In previous lecture, we are study about the two type of classification. First one is two kingdom system of classification, in which all of the living organism is classified into two groups, that is plantae for plant and animalia for animal, on the basis of few characters like presence of photosynthesis, presence of cell wall. And the second one is five kingdom system of classification, in which on the basis of few characters like structure of cell, that is prokaryotic or eukaryotic, unicellular and multicellular organization, mode of nutrition means either photosynthetic plant or non-photosynthetic animal, means heterotrophic mode of nutrition or autotrophic mode of nutrition. And on the basis of phylogenetic relationship, all of the living organism is classified into five kingdom. The first one is Monera, the second one is Protista, the third one is fungi, the fourth one is Plantae, and the fifth is Animalia. Monera include Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria. The Protista include algae and some protozoans. Fungi include yeast, mushroom, like, and Plantae include all of the organism which do photosynthesis, like alga, flowering plants, conifers, angiosperm, and the animalia include worms, insect, reptiles, birds, mammals, at all. Then the first kingdom Monera is described here. The first, the kingdom Monera included the most ancient, the smallest, the simplest, and the most plentiful prokaryote. Uh, in previous classes and in previous years, you are studied that the prokaryote means uh, primitive न्यूक्लियस. जो वर्ड प्रोकैरियोट, वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरी मीन्स न्यूक्लियस. सो द टर्म प्रोकैरियोट का जो मीन्स होता है वो बिफोर न्यूक्लियस. दैट मीन दीज ऑर्गेनिज्म लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, means the nuclear material of the organism is not enclosed within a nuclear membrane. उसमें nuclear membrane completely lack होता है. तो जो उसका न्यूक्लियस है, जो उसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो कुछ बेसिक प्रोटीन्स जो होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के, वो भी absent होते हैं. This kingdom Monera mostly include बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड सम स्मॉलर ग्रुप लाइक माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज. However, the difference in structural and morphological characters among these group are so little, सो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना ग्रुप, सब ग्रुप, जेनरा, स्पीसीज को बहुत टफ टास्क होता है. हम एक एक करके पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया. Bacteria are the minute, unicellular and microscopic, simple and differentiated prokaryotic organism. यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोटिक है, मीन्स लैक ऑफ न्यूक्लियस, माइन्यूट होता है, माइक्रोस्कोपिक. सबसे पहले एक डच नेचुरलिस्ट थे, एंटोनी वॉन लिवेंहॉक. इन्होंने इसको 10 जून 1675 को ऑब्जर्व किया था, और इसको इन्होंने एनिमलक्यूल्स बोला था. एनिमलक्यूल्स मीन्स लिटिल एनिमल ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड मोटालिटी. फिर द टर्म बैक्टीरिया इज कॉइन्ड बाय एरेनबर्ग in 1838. Here some general characteristics of bacteria. First one is occurrence. बैक्टीरिया हम कह सकते हैं यूबिक्विटोस है. यूबिक्विटस मीन्स ये एनीवेयर एंड एवरीवेयर प्रेजेंट है, इन सॉयल, इन वाटर, इन
एयर, ये हर जगह अवेलेबल होता है। ये ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ नहीं होता है ये, एक्सपेक्ट द पिट्स ऑफ वोल्कानो, जो ज्वालामुखी के पिट्स होते हैं उसमें ये नहीं होते। डीप स्ट्रेट्स ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स के एकदम डीप स्टेट वाला पोजीशन है वहाँ नहीं है। माउंटेन्स में नहीं होते हैं। बट सम बैक्टीरिया सो high survival rate, means they can survive in 70 degrees Celsius, which are called thermophilic bacteria, and some bacteria which can survive in minus 119 degrees Celsius, 90, which are called cyclophilic bacteria. साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। साइज पे आते हैं अगर हम, जो एवरेज साइज होती है किसी भी बैक्टीरियल सेल की वो अमंग 1 माइक्रोन मीटर टू 10 माइक्रोन मीटर होता है। बट द स्मॉलेस्ट वन बैक्टीरिया दैट इज कोकाई इज लेस देन 0.1 माइक्रोन मीटर, एंड द लार्जेस्ट बैक्टीरिया दैट इज बेगिएटोआ मिराबिलिस which is 16.45 micron in length, in diameter. शेप की अगर हम बात करें तो द शेप ऑफ बैक्टीरिया इज डिफरेंट टाइप्स, जिसमें वेरिएशन होते हैं। यहाँ तक कि सच बैक्टीरिया सो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, जो कि इन्वायरमेंट के कंडीशन के आधार पर अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, जिनको कि प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहा जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया डिफरेंट फॉर्म्स को शो करता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो कोकस। द वर्ड कोकस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन्स बेरी। बेरी मीन्स ओवैड या स्फेरिकल से बैक्टीरिया होती है ये। सेकेंड वन इज बैसिलस। बैसिलस इज आल्सो लैटिन वर्ड मीन्स स्मॉल रॉड। बैसिलस का जो शेप होता है बैसिलस बैक्टीरिया का, ये स्मॉल रॉड लाइक होते हैं, जो हमारे मिल्क में पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये भी स्मॉल रॉड लाइक होते हैं। स्पाइरम, स्पाइरा आल्सो ग्रीक लैटिन वर्ड मीन्स क्वायल। तो जो स्पाइरम बैक्टीरिया होते हैं ये स्पाइरली अरेंज होते हैं या क्वायल फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट वन इज विब्रियो। विब्रियो मीन्स द बैक्टीरिया इज रॉड से बिट सिंगल कर्व, इसमें बीच में एक स्लाइटली कर्व होता है, हम कह सकते हैं सी शेप बैक्टीरिया इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज फिलामेंटस, मीन्स लाइक अ फिलामेंट। स्टार्क, जिसमें कि स्टार्क पाएगा और ब्रांच पाएगा। एंड बर्डेड, द बॉडी ऑफ बैक्टीरियम इज स्वेलिंग एज प्लेस, जिसमें एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे बर्डन बैक्टीरिया बोलते हैं। अगर फ्लैजिलेशन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ की फ्लैजिला क्या है। फ्लैजिला इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरिया बॉडी which are help in locomotion, nutrition, food capturing at all. So on the basis of the number and mode of attachment of flagella, the bacterial form may be divided into following types. First one is Atricus, means the bacteria in whose flagella is completely absent. Lactobacillus is an example. Second one is Monotrichus, means the single flagellum attached to one end, that is Vibrio cholerae. ये बैक्टीरिया इसका मीन्स कि जो सिर्फ एक फ्लैजिला है और सिर्फ एक पॉइंट पे वो बैक्टीरिया की बॉडी से अटैच है। नेक्स्ट वन इज सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस मीन्स मेनी फ्लैजिला अटैच टू अ वन एंड, एक गुच्छा है फ्लैजिला का, एक बंच या एक गुच्छा अटैच हो बैक्टीरिया के एक ही पॉइंट पे, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट वन इज एम्फिट्रिकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सिंगल flagellum attach at each of two end, that is Nitrosomonas. इसमें सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के दो फ्लैजिला होते हैं, दो डिफरेंट
साइड पे और दो डिफरेंट एंड पे वो अटैच हों। नेक्स्ट वन इज लोफोट्राइकस, जिसमें अ बंच ऑफ फ्लैजिला अटैच ईच ऑफ टू एंड, दोनों एंड पे एक एक बंच ऑफ फ्लैजिला अटैच हो। एंड द लास्ट वन इज पेरिट्राइकस, मीन्स जिसमें फ्लैजिला उसके पूरे बॉडी पे अटैच हो। हेयर द फिगर मोनोट्राइकस, जिसमें सिंगल फ्लैजिला है और सिर्फ बॉडी के एक पॉइंट पे अटैच है। एम्फीट्राइकस, जिसमें दो फ्लैजिला है और दो अलग अलग एंड पे अटैच है। सिफेलोट्राइकस, जिसमें अ बंच ऑफ फ्लैजिला अटैच ऑन द सिंगल पॉइंट। Lophotrichus, a bunch of flagella attached on the back to end. Peritrichus, flagella all around the body. And Astricus means flagella is completely absent. अगर हम बैक्टीरिया के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें तो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कैप्सूल के फॉर्म में होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सो कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो उसका कम्प्लीटली अब्सेंस होता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता, इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें अब्सेंट होती हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया सो बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो कॉमन है वो है बाइनरी फिजन, इन विच a bacteria body is slightly divided into two bacterial cell. Next one is sexual reproduction, which are so conjugation, transduction. इसे हम आगे जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, अभी यहाँ प्रिसाइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं हम। बैक्टीरिया के कुछ इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट भी है, लाइक इन द डेयरी में हम जानते हैं कि जो दही होता है, जो कर्ड है, उसमें जो बैक्टीरिया यूज होती है उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। इसके बाद जो डिके मटेरियल होते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, उनको डिके करने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। सीवेज डिस्पोजल के लिए भी हम कुछ बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, जो सीवेज होता है उसको डिस्पोज करने के लिए, लाइक इस्चेरिशिया कोलाई है, स्यूडोमोनास है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आप लोग अगर लास्ट क्लास में पढ़े होंगे तो उसमें भी एक बैक्टीरिया होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, राइजोबियम जिसको बोलते हैं, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम जो विनेगर देखें तो विनेगर का भी जो फॉर्मेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया होता है। अगेन इन द लेदर इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, एंटीबायोटिक इंडस्ट्री, एंजाइम इंडस्ट्री, बैक्टीरिया के वेरियस यूजेज हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज is a organism which are studied in kingdom Monera. ये भी एक यूनिसेलुलर ब्रांच्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया है, जिसका रिजेम्बलेंस एज लाइक जो फंगल माइसीलिया होती है, जो फंजाई होती है उसकी माइसीलिया जैसी होती है, इसलिए इसको रे फंजाई भी बोलते हैं, फेक फंजाई भी बोलते हैं इसको। मोस्टली ये सॉयल या फ्रेश वाटर मैन्योर्स में, फूड प्रोडक्ट्स में और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। द फिलामेंट्स आर नॉन सेप्टेट टाइप ऑफ ब्रांचेस में पाए जाते हैं, वेरी थिन होते हैं, 0.2 to 1.2 माइक्रोन मीटर। दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कीमो ऑर्गेनोट्रोपिक बैक्टीरिया में से कीमोसिंथेसिस करते हैं। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है या ओइडिया का फॉर्मेशन होता है एज लाइक फंजाई। A few species are so pathogenic effect in human being and other animal
इसके जो पैथोजेनिक इफेक्ट हैं वो काजेस वेरियस डिजीज लाइक स्किन डिजीज को काज करते हैं। मोर ऑफ द स्पीसीज आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। एनारोबिक मीन्स कि इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव, दे कैन रिस्पायर। few species are motile but few are non motile in nature। ये फिगर है इसका। कोनिडिया इज द formation of bird like structure which are so asexual reproduction। next one is mycoplasma। 1898 में एक दो फ्रांस साइंटिस्ट थे, ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स। इन्होंने डिस्कवर किया था सम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्यूरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम बूविंग प्लूरोनोमोनिया। एक महामारी थी जिसमें कि बहुत सारे कैटल्स ऐसे थे जिनको न्यूमोनिया के सिम्टम शो हो रहे थे, रनी नोज एंड ब्लॉकेज ऑफ ट्रैकिया, ऐसे बहुत सारे सिम्टम ऑब्जर्व हो रहे थे। तो इस पर सबसे पहले ये दो साइंटिस्ट ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स ने स्टडी किया था एंड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल एंड आल्सो फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग। कुछ ह्यूमन बींग्स में भी कैरेक्टर थे, तो इन्होंने सबसे पहले इसको पीपीएलओ नाम दिया। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देन अ साइंटिस्ट नेम बोरेल in 1910 named these organisms is Streptococcus myosoides। These organisms were later put under the generic name Mycoplasma by Noack in 1966। Mycoplasma are typically prokaryotic in nature। clear है, अगर prokaryotic है means lack of plasma membrane, lack of nuclear membrane, lack of cytoplasmic organelles, cell organelles। देन ये सॉइल में, सीवेज वाटर में, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में पाया जाता है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन मीन्स आल्सो एनारोबिक बैक्टीरिया, वी कैन से इट इज एनारोबिक बैक्टीरिया। Some mycoplasma occur parasitically and pathogenically in plant, animal and human being। कुछ बीमारी को काज करते हैं, जिसमें कि एक प्लूरोनोमोनिया भी एक बीमारी है जो कि कैटल्स में हुई थी, जिसकी वजह से इसका डिस्कवरी हुआ था। Mycoplasma vary in size mostly from 0.125 to 0.150 micron in diameter। They are the smallest free living microorganism and can pass through bacteria proof filters। जितने भी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूज किए जाते हैं लाइक मास्क एंड ऑल, इससे ये इजीली पास हो सकता है। और एक ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्री फॉर्म में है। दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। प्लियोमॉर्फिक इन नेचर मीन्स कि अपने साइज को चेंज कर सकता है, वेरी स्फेरिकल टू ब्रांच फिलामेंटस शेप में चेंज हो सकता है। इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा आर यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स। नॉन मोटाइल है और gram negative prokaryote which lack a distinct cell wall and do not produce spores। इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेड होता है प्रोटीन से, लिपिड से, कोलेस्ट्रॉल से। RNA आर फाउंड इन 70 टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन इट्स साइटोप्लाज्म। DNA फाइब्रिलर DNA, सल्यूबल RNA एंड सल्यूबल प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। जो सेल्स ऑफ माइटोप्लाज्मा है वो ईजली डिवाइड हो जाता है अनइनेबली इनटू मेनी पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह फंक्शन करता है। माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंस टू द वॉल अटैकिंग एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन। इसके वॉल पे पेनिसिलिन
का अटैक नहीं हो सकता, इसमें जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। हेयर द फिगर ऑफ माइकोप्लाज्मा। यहाँ जो फिगर ए एंड फिगर बी है, ये इसका जो वेरिएशन इन शेप है, जिसकी वजह से इसको प्लियोमॉर्फिक इन नेचर बोला गया, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला गया, उसे शो करता है। फर्स्ट वन इज द स्फेरिकल शेप एंड द सेकेंड वन इज द ब्रांच फिलामेंटस शेप। नाउ थर्ड one is the detailed structure of the mycoplasma. First, plasma membrane is the outer wall of the mycoplasma. Then 70 type of ribosomes also are found. Soluble RNA and soluble protein are found. DNA is found. Here the DNA is strong. Here the DNA is 600 to 1000 सिस्ट्रॉन पर सेल। एक सेल में इसके 600 to 1000 सिस्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स इसमें अवेलेबल है जो कि डिवीजन के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।